this R Studio file. Summarizing, yeah? Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, just give me 10 minutes. I'll discuss this first topic that we will cover today. Okay. So the agenda for today's class is that we have to cover remaining 9 topics so that you can submit the second half of the assignment, that is remaining 17 questions by 6 p.m. today. So the modus operandi, the way of doing things will remain the same. Like you submitted the first assignment, you have to submit it in the same way. One feedback regarding your first assignment is that you need to separate blocks. So if you are seeing, no, this is white space and this block is of gray color. So you need to provide some space, give space here so that you are on white background. Okay, so the one which is in darker color, darker shade is one block. Second thing on your feedback on assignment 1 is that I was expecting more of insights, like give detailed explanation on your code. Don't just write summary function, this, that. Also give explanation what the summary function is telling you. So you can write number of males are these in this data frame, number of females are these many, the minimum income is this, 50% of the income lies between this to this, these kind of insights. So when you submit this assignment to, please ensure that you give it in separate blocks. You have to explain all the things, and also you need to look at the extra analysis perspective, as in other than what all questions I have asked, what other analysis you feel you can do in this data. So these 3 points: separate blocks, explain, give insights, and third is extra analysis, whatever you feel that you can do in that. Okay, so let's start with the first thing, that is summarizing data frame. Okay. Okay. So let's read the file. I'm sure you now know this, how to do this. Control. There are other participants in the waiting room. Can you please let them in? How do I? I have done that. Okay. Okay. So I do this again. So when you read any data set, I'm just starting. You have not missed anything. How many participants do we have? 51. Okay. So when we read data set, you read this data set, control enter. You see this data set in environment. Okay. So this means that you have loaded this data set in your R Markdown file. You click here. You can see about this data set. Now, this is in my environment. So I have loaded this data set just by running this line, reading this line. You will see that this data set will come in your environment. Next is, let's take the summary. Okay. If I were to process, if I have to check what is the average income of each segment, okay, what is the average income of each segment, then I can do this by summarizing the data frame. Okay. So how we will do this? We'll use aggregate to do this. What is this aggregate formula? Speak to yourself. Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am. Can you please others all the rest? Okay, fine. Okay. I'll read the report again.
can see the data by running this line, and I have done nothing. Just I have created use the summary function to create the summary of this data set. Now the question is, if I have to check the average income of each, आज extra रख दिया यार is there any way I can mute बच्चों it? को समझ Can you do this? Can you please mute everyone? Yes, ma'am. I'm trying. So in aggregate function, through aggregate function, you can combine your data set. What is this aggregate function? So this aggregate function, go to this line. Just one second. This 182 row, formula data function. You have to provide 3 things to summarize the data set to use this aggregate formula. Aggregate means combine. So you have to provide these 3 inputs. That is the formula, the data, and the function. Now I want to segment wise average income. I need to use this formula, that is y tilde x. I want you to focus on this formula, that is y tilde x. What does this mean? This means that it will aggregate y according to the levels of x. Level से कुछ याद आया? What is segment नहीं, levels of x. Segment है x, but levels categorical levels or continuous levels you're asking? yes. It's only in categorical because structure run करोगे तुम. Just 1 second. जब हमने यहाँ पर किया था, जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर रन किया था, ये देखा फैक्टर के आगे लेवल्स लिखा हुआ है ना? सिर्फ फैक्टर के आगे ये लेवल्स लिखा हुआ है. दीज आर कैटेगरीज और लेवल्स जिसे हम बोलते हैं. सो y को ये एग्रीगेट कर देगा, ग्रुप कर देगा x के लेवल्स के अकॉर्डिंग. इससे क्या समझ में आता है कि x हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एक फैक्टर है, जबकि y इज अ मीट्रिक वेरिएबल, इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. अब मुझे ये देखना है कि सेगमेंट वाइज मेरा इनकम क्या एवरेज इनकम है. तो मैंने ये फॉर्मूला डाला. सबसे पहले 3 चीज हमें डालनी है जैसे एग्रीगेट के लिए, फॉर्मूला, डेटा और फंक्शन. सबसे पहले मैंने फॉर्मूला डाला इनकम टिल्डे सेगमेंट, बिकॉज सेगमेंट इज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल और इनकम हमारा, कॉमा, फिर हमने डाला है व्हाट इज डेटा दैट आई हैव टू पे, डेटा इक्वल्स टू seg.df, और फिर कौन सा फंक्शन लगाना है. मुझे यहाँ पे टोटल इनकम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एवरेज इनकम चाहिए. सो आई हैव यूज्ड कॉमा मीन. ओके, सिंपल फॉर्मूला. सिर्फ 3 चीजें हमें डालनी है इसमें. इसे हम रन करेंगे एंड सी, वी कैन सी सेगमेंट वाइज क्या इनकम है. ओके, now I want you to try this question. What is the average income by gender? I'm giving you 5 minutes. जैसे हमने ये किया, do it. What is the average income by gender? Just 1 second. मैम सेगमेंट की जगह जेंडर आ जाएगा. हाँ, करके देखो. एग्जैक्टली, सेगमेंट की जगह जेंडर आ जाएगा. फिर मुझे बताओ मेल का क्या एवरेज निकला, फीमेल का क्या एवरेज निकला. मैम ये एग्जिस्टिंग फाइल में करना है या न्यू मार्कडाउन फाइल बना के करना है, जो आप कमांड्स बता रहे हो? फाइल में, एग्जिस्टिंग फाइल में, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड.
जल्दी जल्दी, एक एक ही कोड है ये, बी फास्ट। मैम इसमें जो फंक्शन लगेगा वो मीन ही लगेगा ना इसमें भी? हाँ, क्योंकि मैंने क्या पूछा है, एवरेज इनकम बाय जेंडर, एवरेज इनकम पूछा है। मैम फीमेल की 52,859 है और मेल की 48,824। 48,824। व्हाट इज द नेम? मैम अमन। अमन। तो लेट्स चेक, हमने यही फॉर्मूला लिया, आई पेस्टेड दिस, और सेगमेंट के जगह मैंने क्या कर दिया, जेंडर, ओके, एंड कंट्रोल एंटर। So 52,859 and 48,824. Correct, correct, Aman. Okay, let's go to next. Calculate total income by segment. ये कर सकते हैं? Total income by segment. मैम मेन की जगह सम हो जाएगा। मीन की जगह सम हो जाएगा। Yes, yes, yes. Great, great. क्या वैल्यू आई? टोटल इनकम बाय सेगमेंट, जल्दी जल्दी क्या वैल्यू आई? अभी तक तो हो गया होगा। मैम एक बार मैम ये जेंडर वाला फिर से बता देंगे आप? हमने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन हम देते हैं जिसमें 3 इनपुट्स डालते हैं हम। मुझे ये देखना था कि एवरेज इनकम बाय जेंडर क्या है, ठीक है? अभी बेसिक कोड रन नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? स्पेस अगर मैम स्पेस प्रॉपर नहीं हुई बिटवीन द कमांड्स, लाइक देयर कोई इज problem डीएफ कमांड के बाद स्पेस है, तो मैम तो स्पेस भी डालना जरूरी है? नहीं, बट अगर sec.df के बीच में तुम्हें यहाँ पर स्पेस कर दोगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर Sec dot- स्पेस करोगे तो यहाँ पर फाइल नंबर ये सब तुम इसमें अगर इशू करोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि sec.df से ही वो रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे एनवायरनमेंट पे ये sec.df से ही ये डेटा गया। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन, टोटल इनकम बाय सेगमेंट, क्या वैल्यूज आए? टोटल इनकम बाय सेगमेंट नहीं किया किसी ने ये? मैम पता तो है कैसे करना है, बट पता नहीं डेटा रीड क्यों नहीं हो रहा है। यस मैम। क्योंकि मैम मेरी एरर शो हो रहा है। प्रीवियस मैं मतलब मूविंग basic आपका क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कैसे 3716 करते हैं। सॉरी मैम एरर शो हो रहा है फाइल में। सेम मैम रीड कर रहे हैं तो एरर शो हो रहा है, एंड Same क्वेश्चन issue समझ आ आ रहा रहा है। है, करने के लिए ये भी समझ आ रहा है बट करा नहीं जा रहा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। बट तुमने ये एरर क्या आ रहा है, एरर क्या शो कर रहा है? मैम Read जब करो। हम हाँ जब कंट्रोल एंटर कर रहे हैं तो वो रीड नहीं कर रहा है, एरर इन समथिंग कुड नॉट फाइंड फंक्शन, मतलब मेरे में ऐसा आ रहा है। मैम रन नहीं हो रहा। मैम सेगमेंट मैम कैन वी डू लाइक फ्रॉम वेरी बेसिक मैम लाइक फ्रॉम हो रहा है मैम, हो गया हो रहा है मैम। ओके, मैम मूविंग आपका है हो रहा मैम, फिर से बता दो। 37638 मूविंग अब है, सब रब है, ट्रैवलर से अर्बन है और अर्बन हिट है मैम। मैम इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन शेयर द रीसेंट फाइल एंड वी ओपन दैट फाइल एंड फिर हम स्टार्ट करें, लाइक कोई रीसेंट फाइल है तुम्हारे पास, असाइनमेंट तुमने किया था उसमें sec.df हाँ वाला? मैम उसी में कर रहे हैं बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। इंटरनेट मैम, ये भी तो कनेक्शन की वजह possible से हो हो रहा है, सकता है कनेक्शन कि, की वजह से नहीं लोड हो रहा है। और जो आपने प्रीवियस डाटा दिया था उस कारण से रीड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम सिर्फ हेलो, ये जो पूरी लाइन है या फिर ये लिंक चैट में पेस्ट कर दो एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, बट अदर्स Yes, आर एबल टू डू इट और तुम्हें भी समझ में आ रहा है, तो आई हैव Yes, दिस ma'am. कॉन्फिडेंस
ये कर लोगे। यस मैम, समझ आ रहा है, Yes, ma'am. समझ आ रहा है। यस ओके, जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों फाइल भी रीड हो रही है। ओके ओके वेरी गुड। ओके, जिन लोगों ने किया है दिस क्वेश्चन, टोटल इनकम नंबर्स बताओ। मूविंग अप का क्या था? 37 मैम वो शायद सेगमेंट का एस छोटा डाल दियो, इसलिए वो एरर आ रहा है मैम। ओके, मैम आ रहा है, लेकिन आंसर आ गया मैम। आंसर बताओ। 37 मैम, मूविंग 16368 अब मिक्स का आ रहा है 55038382। तो नॉट रिक्वायर्ड, अभी यहीं पर करके देखते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। तो हमें क्या करना था? चैट में कमांड लिख दी है मैम। Good, good. हमने किसी को ही कर देते हैं। मुझे निकालना था, क्लब करना है इनकम बाय सेगमेंट, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है? कम आएगा। सम करना है। तो आई विल डू इट लाइक दिस, और इसे मैं रन कर दूंगी, ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट का इनकम क्या क्या है, बट ऑल्दो सम जो है हमें इतनी अच्छी पिक्चर नहीं देती, इज अ बेटर वे टू डेटा सेट। ओके, एनीवेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर डालना है, और इस एग्रीगेट फंक्शन से हम कैसे क्लब कर सकते हैं। आगे चले? मैम एक डाउट मैम था। सेगमेंट पॉइंट चेंज कर रहे हैं मैम, जेंडर जैसे चेंज करा, मैं सेगमेंट चेंज किया, मैम ये किस पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारा राइट साइड में था, राइट साइड में हमारा कैटेगरीज है, ठीक है, और हमारा लेफ्ट साइड में मीट्रिक है। हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में कोई कैटेगरीज नहीं है, राइट? उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का टॉप ब्रेक बोल दो इसे, या साइड ब्रेक ले लो, जैसे हम एक्सेल में बोलते हैं या पाइवट में बोलते हैं। तो हम मीट्रिक वेरिएबल को, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल की कैटेगरीज वाइज क्लब कर रहे हैं। अब जो राइट साइड में था, जैसे मैंने बोला कि y टिल्डे x का मतलब है आप y को क्लब कर रहे हो, दैट इज एग्रीगेट कर रहे हो बाय द लेवल्स ऑफ x, दैट इज जो राइट साइड में है। मीनिंग आप इनकम को एग्रीगेट कर रहे हो बाय सेगमेंट, बाय लेवल्स ऑफ सेगमेंट। एंड व्हेन आई से लेवल्स ऑफ सेगमेंट, हमने जब समरी फंक्शन रन किया या स्ट्रक्चर फंक्शन रन किया, तो हमने देखा फैक्टर के आगे लेवल्स लिखा आता है। बेसिकली ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है? अब कोई इसमें क्वेरी या कोई कंफ्यूजन या कुछ और जो चीज समझ में नहीं आई? हाँ बोलो। सॉरी, क्या आ रहा है? हम फंक्शन रन हो रहा है बाय चेंजिंग इट द एस टू द कैप्स, बट आंसर्स अलग आ रहे हैं। तुम ये खुद करना, अगर रन कर पा रहे हो तो हो जाएगा, और लोगों ने कर लिया तो हो जाएगा, फॉरम पे करना। और तुम जब ये फाइल रन करोगे तुम्हें समझ में आएगा। फर्स्ट सेशन, इससे पहले वाला सेशन जब मैंने रन मतलब लिया था, तो सब तुम कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भी 50 लोगों ने करके दिखाया ना, सो इट्स पॉसिबल। ओके मैम, बेसिकली आइडिया इज, जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, उस पे फोकस करो। इसमें और क्या कि इनकम, सेगमेंट, कैटेगोरिकल वेरिएबल हमने राइट में लिख रखा। मैम सेगमेंट क्या है ये इसमें? सेगमेंट ये एक डेटा सेट है, ये दिस इज जस्ट सैंपल डेटा सेट, जिसमें हमने कुछ अच्छा, सेगमेंट डेटा में, ओके सॉरी मैम। हाँ, ये जो सेगमेंट है ये कॉलम है। ये देखो, समरी रन करके देख लो जल्दी से, ये डेटा क्या था। एज, जेंडर, इनकम, होम ओनरशिप, सब्सक्राइब, सेगमेंट, ये सब चीजें हैं इस डेटा सेट में, ठीक है? ओके मैम पूछना, जैसे हम कोई भी फंक्शन रन कर रहे हैं तो जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो इसी शीट में आ रहे हैं, लेकिन जब जैसे हमारा मैम कंसोल में आ रहा है। कंसोल में आ रहा है मैम ये,
तो हम इसका पर्टिकुलर कंसोल रीजन क्या है? आ रहा है क्योंकि तुमने ना एक ब्लॉक नहीं बनाया होगा। ब्लॉक बनाना इज लाइक, तो सबसे पहले यहाँ बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पे हेल्प में जाओ, ये देख रहे हो हेल्प, यस मैम। क्लिक करना, मार्क डाउन क्विक रेफरेंस, ऐसे करना तो ये विंडो आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे ना, ठीक है। इसमें जो बेसिक मार्क डाउन की चीजें है ना कि हेडर करने के लिए क्या करें, लिस्ट बनाने के लिए क्या करें, ब्रेक बनाने के लिए क्या करें, लिंक्स कैसे ऐड करें, ये सब चीज इसमें आ जाएगी, और ब्लॉक्स ऐड करते हैं, ये सब चीजें इसमें है। अब तुम्हारा अगर कंसोल में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो है ये ब्लॉक ठीक से क्रिएट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि तुम ये चेक करो कि तुम्हारे ब्लॉक के ऊपर और नीचे वाइट स्पेस है, सेपरेटेड है ये ब्लॉक। अगर नहीं है तो ये जो तीन, जब तुम क्लोज कर रहे हो, ब्लॉक को क्लोज किया है या नहीं तुमने, और अगर क्लोज कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ा सो दैट तुम्हारा कर्सर ये वाइट स्पेस पे आ जाए। दिस इज हाउ यू क्रिएट ब्लॉक, ठीक है। अब रन करके देखो, इट शुड कम यहाँ पर ही, कंसोल में आना नहीं चाहिए। ओके फाइन। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आर एंड आर मार्कडाउन? तो मैम हम करते क्यों है, मतलब आर मार्कडाउन नॉर्मल आर में क्यों नहीं कर पा रहे? यस मैम। तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर लिखना ज्यादा इजी है, ये डिफरेंट ब्लॉक्स में ही हम रन करके इट्स इजियर, सारे उसमें प्रॉब्लम नहीं करते हैं। देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू HTML फाइल, यू कैन आल्सो पब्लिश योर HTML फाइल डायरेक्टली। बहुत सारी चीजें हैं, यू नो, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड। अभी मैं सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ, बट गो टू दिस हेल्प, चेक आर मार्कडाउन में क्या क्या फीचर्स हैं। इट्स लाइक ज्यादा विजुअली अट्रैक्टिव होती है, काफी सारी चीजें बहुत इजीली बन जाती है। इसकी तुम रिपोर्ट्स भी बना सकते हो, यू कैन राइट यू नो एवरीथिंग अबाउट द कोड्स दैट यू आर रनिंग, एनालिसिस वगैरह सब कुछ। अलग से रिपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन यू नो मेक योर कोड्स एंड राइट अबाउट इट। Another thing is that I want you to go through some blogs जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट करते हैं या मशीन लर्निंग वाले करते हैं। They generally prefer to write all the blogs in this format. वहाँ पर ही कोड्स भी लिखा होगा और वहाँ पर ही उसका इंफॉर्मेशन भी लिखा होगा। ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली जनरेट द रिपोर्ट, सब कुछ तुमने ये कोर्स यहीं पर लिखे, नीचे तुमने एनालिसिस भी लिख दिया और तुमने उसे निट कर दिया या तो PDF फॉर्मेट में, तो तुम कर सकते हो। इजी एक्सेसिबल के लिए है ये, easily accessible, it's visually much better, बहुत सारी चीजें हैं, we'll get to know। all right ma'am, thank you। इनलाइन कोड्स भी तुम कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हो गया? इनकम ऑफ ट्रैवलर सेगमेंट क्या आया? मैम एक बार आप इसका कोड बता सकते हैं? ओके, अभी हमने ये किया ना इनकम सेगमेंट वाइज इनकम को, पर हमने टोटल किया। यस मैम। इनकम ऑफ ट्रैवलर सेगमेंट क्या है इसमें? देखो यहीं से ही देखो, ये तो 49,777,115 वो तो अर्बन हिप का है। नहीं, वो तो तुम्हारा कौन सा कोड है? तो 1084096 इज अर्बन हिप। मैम कॉलम सेगमेंट, कॉलम जो सेगमेंट नाम का जो कॉलम है उसके डेटा हैं ये। मैम एग्रीगेट और सम का बता देते हैं एक बार। हमारा ये डेटा था seg.df read.csv, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मैंने कंट्रोल एंटर, समरी देखी, ये एज, जेंडर, इनकम, किड्स, ओन होम, सब्सक्राइब, सेगमेंट, ये सारे कॉलम्स हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। मैंने ये डबल क्लिक किया ना यहाँ से, ये देखो ये डेटा आ गया। आप डेटा को ऐसे भी देख सकते हो, जब एक बार ये एनवायरनमेंट में लोड हो गया, इसे डबल क्लिक करना तो ये एक नई फाइल में, इसके साइड में एक नई टैब में यहाँ पर आ जाएगा। तो एज, जेंडर, इनकम, किड्स, ओन होम, ये सारे तुम्हारे कॉलम्स हैं, सेगमेंट के अंदर है ये सब,
सबर्ब मिक्स। और तुमने क्या किया है, इनकम को इन सेगमेंट की, जो 4 सेगमेंट है, इसके अकॉर्डिंग तुमने, इसके लेवल्स के अकॉर्डिंग तुमने ये क्लब कर दिया। ठीक है, ओके ओके। अब हम देखते हैं एवरेज एज बाय हाउस ओनरशिप। ओके, होम वाला भी सेगमेंट ओन हाउस। मैम एग्रीगेट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए। मैम बाय कॉलम वाइज है पूरा? हाँ, अब यही मैंने बताया कि लेफ्ट में तुम वो वाला वेरिएबल रखोगे, कॉलम्स तो ये सारे ही हैं, एज जेंडर इनकम। वेरिएबल मतलब जो कॉलम्स में आते हैं वो सारे आपकी वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स तो ये सारे ही है, एज जेंडर इनकम। ये देखो, एज जेंडर इनकम किड्स फोन होम सब्सक्राइब सेगमेंट। और जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, फैक्टर्स, जो तुम स्ट्रक्चर फंक्शन रन करके देखोगे फैक्टर्स कौन से हैं, वो तुम्हारी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है। तो जो मीट्रिक वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम उसे ग्रुप कर सकते हो। ओके, ये एग्रीगेट फंक्शन करता है। और इसमें 3 चीजें डालनी होती है। ये फंक्शन दैट इज वाई टिल्डे एक्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो राइट में रखना, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लेफ्ट में रखना। बेसिकली जो भी तुम्हें कंबाइन करना है वो लेफ्ट में रखोगे, और जो जिसके लेवल्स पे कंबाइन करना है वो राइट में रखोगे। कॉमा डेटा जो तुम उठा रहे हो, कॉमा सम। ओके, ऑलराइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, एवरेज एज बाय हाउस ओनरशिप, ये कितने लोगों ने कर लिया? मैम 36.88 आ रहा है नो, और यस आ रहा है 46। यस आ रहा है 46 पॉइंट। यस आ रहा है 46। व्हाट इज योर नेम? अमन। अमन अगेन। मैम आई आल्सो हैव डन दिस। हाँ बताओ, व्हाट्स योर नेम गर्ल? अमीशा गुप्ता। Amisha Gupta, yes. You are also there. I have also done the same. Very I'm good. same here. Okay. I'm Karthik. I'm same here. Ayush. Okay, good good. तो हमें एवरेज एज करना था, तो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या था? ये एग्रीगेट एज इक्वल टू ओन करना है बाय एज। यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर एज किया और ये करेंगे मैम ओन होम भी आएगा सेगमेंट की जगह। ओन होम आएगा यस मैम। सेगमेंट की ओन होम आएगा। सेगमेंट की जगह चेंज करके ओन होम आएगा ना? यस यस यस, बाय ओन। मैम होम का एच, Excuse me, ma'am. Actually, it is showing the error of होम का नाम एच कैपिटल आएगा। गुड गुड गुड। तो ठीक है, ये सारे एरर्स जो है ये तुम्हें समझ में आने चाहिए, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार रन करोगे, अच्छा ये एरर आया तो शायद ये गड़बड़ है। ठीक है, ओके। सो एग्रीगेट मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया है काफी। यस मैम। यस मैम। तो जो भी क्वेश्चंस हैं एग्रीगेट के रिगार्डिंग, ये सब तुम कर सकते हो नाउ। अच्छा, व्हाट कैन वी डू एंड कांट डू, तुम्हें अब ये भी समझ में आ गया है कि राइट साइड में क्या क्या रखेंगे। राइट साइड में हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी रखेंगे और लेफ्ट साइड में हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं इसमें? डिस्क्रिप्टर्स फॉर टू वे ग्रुप, क्रॉस टैबुलेशन भी कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये है, और अपने डेटा को स्लाइस करते हैं, और कोहोर्ट स्लाइस हम वो कैसे करेंगे? वी विल ऐड मोर कैटेगोरिकल। जैसे हमने इनकम को सेगमेंट वाइज किया था, यहाँ पर प्लस एक और कैटेगोरिकल वेरिएबल डाल दिया मैंने, होम होम। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स बिलोंगिंग टू मूविंग अप सेगमेंट? ठीक है, रन करो, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताना, और इसमें ध्यान से देखना, एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स बिलोंगिंग टू मूविंग अप सेगमेंट।
54497.6. 54497.68. मैम ये तो है ऑन नो का। नहीं, मैंने वही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स belonging to yes, that is 50216.37. Okay, 50216.137. And what is your name? 0.37. मिताली। मिताली। सबका यही आ रहा है जो मिताली कह रही है? Average income of house owners. Average income of house owner. The average. मैम क्या आ रहा है आंसर? 50216.37. नहीं आ रहा मैम, बताओ कैसे आएगा? हाँ मैम आ गया, मूविंग अप का तो आ गया। ओके, अब देखते हैं। मैंने बोला था एवरेज इनकम, मैम आ गया, लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। और मैंने मूविंग अप का नो आ गया। नहीं, ये तो जो क्वेश्चन है सिर्फ उसका आंसर दो। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स? एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स बिलोंगिंग टू मूविंग अप सेगमेंट। तो सेगमेंट मूविंग अप वाला ही देखना है हमें। मूविंग अप सेगमेंट के ये दो है। अब इसमें से कौन सा करना है? एवरेज इनकम ऑफ हाउस ओनर्स, बेसिकली ओन यस जिसने बोला हुआ है, ठीक है। और उसका एवरेज इनकम है 50216.37। तो राइट मिताली, गुड गुड। If I have this question, which has highest income? किसकी highest income है? Travelers who don't own a house. No. Own a house. Who don't own a house. Own no. Yes, 63188.42. Right. ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें और डिटेल में देखना है कि हाईएस्ट एवरेज इनकम वो वाले सेगमेंट्स जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और ओन होम है, उसमें से सबसे हाईएस्ट एवरेज इनकम और एक लेवल हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम बता दो वो वाला, ये वाला यस मैम, सेगमेंट प्लस ओन होम, प्लस होम, बस इसे ये रन। और मेरा क्वेश्चन था कि एवरेज इनकम हाउस ओनर्स का बताना है बिलोंगिंग टू मूविंग अप सेगमेंट। तो सबसे पहले तुम फर्स्ट कॉलम क्या है? सेगमेंट वाला, मूविंग अप सेगमेंट में देखना है। और मूविंग अप सेगमेंट में तो पर हमारी 2 रोज है, तो कौन सा वाला देखना है? ऑफ हाउस ओनर्स, यानी जिन्होंने ओन होम में यस बोला होगा, ओन यस। तो 50216.37 हमारा आंसर है। मैम इसको सेगमेंट डॉलर मूविंग अप नहीं कर सकते अगर मूविंग अप का एक्सक्लूसिवली चाहिए तो? अच्छा, करके देखना, ये भी नोट करो, तुम एक्सप्लोर करना। मूविंग अप को तुम सिर्फ डालोगे तो क्या होगा? नहीं मैम, सेगमेंट डॉलर मूविंग अप तो अगर वो स्पेसिफाई करे तो उससे होगा काफी, मतलब कंबाइन करने के लिए अगर तुम्हें सिर्फ ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है कि विच कोहॉर्ट हैज हाईएस्ट इनकम, तो तुम्हें तो सारा देखना पड़ेगा। पर हाँ, डॉलर करके भी, इनफैक्ट डॉलर करके नहीं, बाय और लिस्ट करके हम और इसे एग्रीगेट कर सकते हैं। मैम एरर आ रहा है।